Good morning, students. Today we are going to start with direct and reported speech. As per your grammar textbook, this chapter is divided in 3 parts. Today we are going to start with first part, that is chapter 19, direct and reported speech part 1, which is based on statements. Okay? Now let us understand the meaning of direct speech. Okay? So, what do you mean by direct speech? When the actual words of speaker are quoted as it is called direct speech. Means when we say the actual words, what a person said is called direct speech. Okay? Now here, the exact words of speaker are enclosed in inverted commas. Okay? Whatever the person is saying is enclosed in inverted commas. Now let us see the example which is given here. Here John is asking Yogesh that what are you doing? So Yogesh is replying, I am studying. So here योगेश ने जब बोला कि आई एम स्टडिंग तो वो उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं. जॉन ने जब पूछा योगेश से तो उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ओके. Now let's see what is indirect speech. Here in indirect speech, actual words of the speaker are transformed. That is, we change the words of the speaker and convey the same message. Okay, so let's understand this example again. Now here, when John asked Yogesh, what are you doing? Yogesh said, I am studying. So here Yogesh is the speaker. योगेश ने ये वर्ड्स कहे हैं ना, आई एम स्टडिंग. सो योगेश कौन है? स्पीकर, जो अपने एक्चुअल वर्ड्स को कन्वे कर रहा है. सो डायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस विल बी योगेश सेड आई एम स्टडिंग इन इन्वर्टेड कॉमास. As you have learned that actual words are put in inverted commas. So said here is reported verb. RV is written. डायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे तो सेड के नीचे आरवी लिखा है, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब. और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई एम स्टडिंग एंड इट इज इन्वर्टेड, इट इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास. ओके. अब जब जॉन दूसरों को बताएगा तो वो कैसे बताएगा? योगेश सैड दैट ही वॉज स्टडिंग, कि योगेश ने कहा कि वो पढ़ाई कर रहा है. सो द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस विल बी योगेश सैड दैट ही वॉज स्टडिंग, कि योगेश ने कहा कि वो पढ़ रहा है. ओके. नाउ चिल्ड्रन, व्हेन वी कन्वर्ट द स्टेटमेंट गिवन इन डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, द इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड and the tense is also changed, and after the word said, that will be used. Okay, that will be used to convey what the speaker said by changing the tense and removing the inverted commas. Okay, so this way we will change the direct speech to indirect speech with some rules which we have to follow and keep in mind while changing the direct speech to reported speech or indirect speech. Now let's study this chapter in detail with some rules. Okay, there are two ways of telling somebody what Gopi said. दो तरीके हैं बताने के कि गोपी ने क्या कहा. The first one, A, is Gopi said, I am tired. Okay, the next one is B, Gopi said that he was tired. Okay, let's study in more detail. In A, we have repeated Gopi's actual words. गोपी ने जो कहा था ना, सेम हमने एक्चुअल वर्ड्स उसके ए वाले सेंटेंस में लिखे हैं. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था ना योगेश वाला, वैसे ही है सेम. जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो होती है डायरेक्ट स्पीच. नाउ नोट द इन्वर्टेड कॉमास. You are seeing the inverted commas in sentence A. But in B, we have not repeated Gopi's words. B वाले केस में हमने गोपी के words same नहीं लिखे हैं ना. We have changed them. We have only given the meaning of what he said. बोल सेम रहे हैं, that is convey सेम होगा meaning, but the words will be different.
सो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच कहें या इनडायरेक्ट स्पीच कहें वो सेम बात होती है. सो जब हमको मीनिंग कन्वे हो जाए कि उसने क्या कहा था तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. नाउ here are some rules which you might have noticed here. You may have noticed the following changes in the reported statement. आप बी वाले केस में देखेंगे तो कुछ चेंजेस आपने नोट किए होंगे. Now first change is the reported words are introduced by that. जो भी reported words थे ना inverted commas में था I am tired, वो हमने इंट्रोड्यूस किससे किए? दैट से. दैट इज हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और हमने दैट लिख दिया. ऑल्सो अ नोट इज गिवन इन द ब्रैकेट दैट द वर्ड दैट कैन बी ओमिटेड. दैट इज हम दैट नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट चेंज इज इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड. ओके, इन्वर्टेड कॉमाज हम रिमूव कर देंगे जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वे कर रहे हैं. देन इज द वर्ब एम has become was. That is, in the first sentence, if you look, short form of am is used with I. That is, I am tired. ऐसा लिखा हुआ था. जब हमने उसे indirect में कहा तो हमने लिखा he was tired. हमने am की जगह पे हमने क्या किया? was लिख दिया. Next is pronoun I has become he. I की जगह पे हमने क्या कर दिया? he. ओके, हम जब कन्वे करते हैं तो हम अपने बारे में नहीं बता रहे ना. वी आर सेइंग द गोपीज वर्ड्स. सो वी विल राइट व्हाट? ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड और गोपी सेड ही वॉज टायर्ड. नाउ हेयर आर सम डिटेल्ड नोट्स ऑन द चेंजेस दैट शुड बी मेड when we turn डायरेक्ट स्पीच into रिपोर्टेड स्पीच. जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये सब डिटेल में दिए हुए हैं चेंजेस कि क्या क्या करने चाहिए. Let's see. When the reporting verb, that is example, the verb said in the example above is in past tense. The tenses of the verb in direct speech usually change as follows. जब भी reported verb said जो होता है दिया हो, अगर past tense में दिया हुआ है said, ऐसे ID से नहीं लिखा है said लिखा है, तो जो भी sentence दिया हुआ है ना उसके tense change हो जाएंगे. और ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं. ओके, द फर्स्ट रूल इज सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू द सिंपल पास्ट. दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंपल पास्ट टेंस में. ओके, लेट्स सी. ही सेड एनी लुक्स सेड. दैट इज रिपोर्टेड स्पीच में अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ही सेड एनी लुक्ड sad, sad, sad. Okay, he said that and he looked sad. Looks का क्या हो गया? Looked. Okay. Also, we have not used the word that here as it was told you earlier that the word that, that can be omitted. Okay. The next rule is the present continuous changes to the past continuous. That is, present continuous tense जो है वो past continuous tense में convert हो जाएगा. In the direct speech it is written he said, inverted commas में लिखा है I am writing to my uncle. ठीक है, इसने ये कहा है कि मैं अंकल को लेटर लिख रहा हूँ. Now in reported speech जब हम दूसरे किसी को जाकर बताएंगे तो हम क्या कहेंगे कि उसने कहा कि वो लेटर लिख रहा है. ओके, सो he will say in reported speech he said that he was writing to his uncle. अब ध्यान से देखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास जब हटे हैं तो हमने वर्ड लिखा है दैट. ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है हमने दैट से रिपोर्टेड स्पीच को. और फिर हमने आई की जगह पर क्या लिखा? ही, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ही सेड. शी सेड बोला होता तो हम लिखते हैं शी, बट इट इज़ गिवन ही सेड तो हम आई को हटाकर लिख रहे हैं ही. एम राइटिंग को कन्वर्ट कर दिया हमने पास्ट कंटिन्यूस में वॉज राइटिंग. ओके, पहले लिखा था टू माई अंकल, हमने कर दिया टू हिज अंकल. ओके, दिस वे वी विल चेंज द सेंटेंस बाय सम रूल्स. नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू द पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है शी सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क.
ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और वर्ब के पीछे ईडी ऐड हो जाता है. ओके, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब प्लस ईडी. सो अब हमने देखा शी सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क. हम जब उसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी सेड. आई की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे वर्ड शी हैड फिनिश्ड. क्योंकि प्रेजेंट था तो हैव फिनिश्ड था प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से. अब हम उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो लिखेंगे हैड फिनिश्ड द वर्क. हैव फिनिश्ड विल बी चेंज्ड इनटू हैड फिनिश्ड. ओके, नेक्स्ट द लास्ट वन इज द सिंपल पास्ट चेंजेस टू द पास्ट परफेक्ट और स्टेज द सेम. सिंपल पास्ट टेंस जो है वो या तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे या फिर हम उसे ऐसा ही रहने देंगे सेम एज इट इज़. सो इन डायरेक्ट सेंटेंस इट इज़ गिवन दे वेंट फॉर अ पिकनिक. रमेश सेड टू मी. रमेश ने कहा मुझे आकर कि ये लोग पिकनिक गए हैं. ओके, नाउ रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या कहेंगे, रमेश टोल्ड मी दे हैड गॉन फॉर अ पिकनिक. ठीक है, हैड गॉन भी लिख सकते हैं या वेंट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है वेंट भी हम लिख सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, द विल कैन मे फॉर्म्स चेंज टू द वुड कुड माइट फॉर्म्स. दैट इज विल कैन मे फॉर्म में जब भी दिए होंगे सेंटेंस तो हम जब चेंज करेंगे तो वुड कुड और माइट रिप्लेस कर देंगे उनके साथ. नाउ द डायरेक्ट सेंटेंस इज द बॉय सेड माई फादर विल बी बैक सून. इन द रिपोर्टेड स्पीच वी विल राइट द बॉय सेड, इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे. माई फादर की जगह पर हम लिख रहे हैं हिज फादर. ओके, माई विल चेंज इनटू हिज. विल बी क्वेश्चन में दिया हुआ था विल बी, वी विल चेंज इनटू वुड बी बिकॉज एज पर द रूल will, can और may will be changed into would, could, might respectively. तो यहाँ पर will be दिया हुआ है, हम चेंज कर देंगे would be में. ओके, would be back soon. Let me read it. The boy said his father would be back soon. Okay. Next example under this is he may pass the exam. Usha said to us. अब यहाँ पर जिसने बोला है वो हमारे सेंटेंस के एंड होते हुए लिखा हुआ है. दैट इज़ इन्वर्टेड कॉमास पहले हैं और फिर बाद में जिसने कहा है वो दिया हुआ है. सो उषा ने कहा कि ही में पास द एग्ज़ाम. किसी के लिए कहा है उषा ने. सो हाउ वी विल राइट इन रिपोर्टेड स्पीच, उषा टोल्ड अस ही माइट पास. मे पास को हम क्या कर देंगे, माइट पास द एग्ज़ाम. इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे एंड वी विल राइट डाउन उषा टोल्ड अस he might pass the exam. Okay. Now below this example, an important point is given. The past continuous and the past perfect stay the same. That is, when a sentence or direct speech is given in past continuous and if it is given in past perfect, both will remain the same. No changes will be done. Okay. Next is, when the reporting verb is in the present tense, the tenses do not change. Now, what do you mean by the reporting verb? As told you earlier, reporting verb is said. Said जो होता है वो reporting verb होता है. अगर डायरेक्ट स्पीच में said वर्ड लिखा है तो चेंजेस किए जाते हैं, बट अगर said की जगह पर say लिखा है SAY say तो हम चेंजेस नहीं करते हैं. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन हेयर. डायरेक्ट स्टेटमेंट इज ही सेज आई एम फीलिंग इल. उसने कहा ही इज़ फीलिंग इल. ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम उसे क्या कर देंगे, ही सेज ही इज़ फीलिंग इल. नाउ वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज सेज लिखा हुआ है और सेज क्या डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट टेंस. इसीलिए हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में जो है हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, टेंस के चेंजेस नहीं करेंगे. टेंस विल रिमेन द सेम. प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है तो हम भी प्रेजेंट टेंस में ही आंसर करेंगे. सेज का सेज ही हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. आई की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ही. एम का हो जाएगा इज़. ओके, आई एम की जगह पर हम यूज़ करेंगे ही इज़ एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी सेम. सो ही सेज ही इज़ फीलिंग इल. The next example is, she has just said, I have finished the work. उसने अभी अभी कहा कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया.
रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या लिखेंगे? शी हैज़ जस्ट सैड, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। आई हैव की जगह पर हम क्या लिख देंगे? शी हैज़, बिकॉज सेंटेंस किससे रिलेट कर रहा है? गर्ल से। शी हैज़ फिनिश द वर्क। आई हैव को चेंज करके सिर्फ शी हैज़ करना है, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा, नो चेंजेस विल बी डन। ओके, व्हेन द वर्ड सेज इज रिटन ओनली फ्यू चेंजेस आर डन, एंड सेड इज रिटन तो हम जैसे लिखते हैं वैसे ही, बट माइनर चेंजेस ही होंगे। आई हैव की जगह पर हमने जैसे शी हैज़ कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। इसीलिए मैंने कहा आई की जगह पर जैसे हमने शी यूज़ किया है, प्रोनाउंस सिर्फ चेंज होंगे, माइनर से ही चेंजेस होंगे, बट टेंस सेम रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। लेट्स स्टडी दीज एग्जाम्पल्स विच आर गिवन हेयर। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है आई विल फोन यू एट 5, ही सेड टू मी। नाउ हेयर इफ़ यू लुक केयरफुली, ही सेड टू मी इज़ द स्पीकर। वैसे हमारा स्पीकर जो होता है हम आगे लिखते हैं, नाम जो होता है हम आगे लिखते हैं, यहाँ पर पीछे दिया हुआ है, और जो वर्ड्स बोले गए हैं वो आगे हाईलाइटेड इन्वर्टेड कॉमास में किए गए हैं। ही सेड टू मी दैट आई विल फोन यू एट 5। अब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी विल राइट ही टोल्ड मी। सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। ही सेड टू मी है तो हम लिख देंगे ही टोल्ड मी। डोंट राइट ही टोल्ड टू मी। ओके, वी विल राइट ही टोल्ड मी ही वुड फोन मी एट 5। विल का क्या हो जाता है? वुड। सो आई विल की जगह पर हम लिखेंगे ही वुड। आई विल बी चेंज्ड इनटू ही, एंड विल बी चेंजिंग इनटू वुड। विल को हम किस में चेंज कर देंगे? वुड में। फोन यू, एंड वी विल राइट फोन मी। यू की जगह पे हम मी लिख देंगे, एट 5 विल रिमेन सेम। सो फाइनली he told me he would phone me at 5. Next is I will phone you at 5, she said to him. Okay, the girl is saying the boy that I will phone you at 5. अब reported speech में हम लिखेंगे she told him. said to him की जगह पर हम कर देंगे she told him. I will को replace कर देंगे she would से। I will phone you at 5 लिखा था, हम लिखेंगे she would phone him. यू की जगह पर आ जाएगा हिम, क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे तो आप लिखा हुआ है शी सेड टू हिम, तो यू की जगह पर हम डाल देंगे हिम एट 5. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच इज गिवन आई विल फोन यू एट 5, आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा है। सो हर यहाँ पर कौन है? गर्ल, हमने गर्ल को कहा है। सो अब हम लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में आई टोल्ड हर आई वुड फोन हर एट 5। यू की जगह पर आ जाएगा वर्ड हर। ओके, आई वुड फोन हर एट 5. दिस वे वी हैव टू कीप सम चेंजेस इन माइंड एंड देन चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच. Now here a table is given in which some words are given which will be changing from direct speech to reported speech. ध्यान रखना है हमको, जब भी ऐसे वर्ड्स दिए हों तो उनकी जगह पर हम दूसरे वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच में क्या डालेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज नाउ. अगर क्वेश्चन में नाउ है, डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया हुआ है, तो हम जब रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे देन और एट दैट टाइम. नाउ को हटाकर हम लिखेंगे देन और एट दैट टाइम. Now second is today. Today will be changing into that day. Same way tonight, so we will write that night. Now next is last week or month is given. ऐसा कहा गया है last week, तो हम लिखेंगे the previous week. If it is last month, we will write the previous month. Or else we can write the week or month before. Whatever is given in the question. Week दिया हुआ है तो week लिखेंगे, मंथ दिया हुआ तो मंथ लिखेंगे. द वीक बिफोर भी लिख सकते हैं, द मंथ बिफोर भी लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा. नेक्स्ट इज नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर इज गिवन, देन वी विल राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एज द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट ईयर और द मंथ आफ्टर और द ईयर आफ्टर. जैसे जैसे आप करेंगे तो आइडिया आता जाएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट इज येस्टरडे. येस्टरडे लिखा है अगर डायरेक्ट स्पीच में, देन वी विल राइट द प्रीवियस डे और द डे बिफोर. Next is tomorrow. If tomorrow is given in direct speech, we will write the next day, the following day or the day after, any particular
thing can be used from these three given here. Okay, so this way we have to remember this table. Children, you have to learn this table and keep in mind. Okay, this table is very useful and important to change the words from direct speech to reported speech. Now the next rule is, but if the speech is made and reported during the same period, these changes are not necessary. For example, compare the below given sentences. The first one is, on Friday last he said, my father will come today, in inverted commas. Okay. Now in reported speech we will write, on Friday last he said, we will remove the inverted commas. We will write his father. My father की जगह पर हम लिख देंगे his father. Okay, because क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इसलिए हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि my वर्ड को हटाकर हम his लगाएंगे. अगर she लिखा होता तो हम लिखते her father. तो my की जगह पर हमने प्रोनाउन चेंज करके his कर दिया. will come today ऐसा दिया हुआ था डायरेक्ट स्पीच में. हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल राइट वुड कम. टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे. अभी अभी हमने जो टेबल स्टडी किया उसमें दिया हुआ था ना रूल, टुडे का हो जाएगा दैट डे. सो अगेन आई एम रीडिंग. रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, ऑन फ्राइडे लास्ट ही सेड हिज फादर वुड कम दैट डे. टुडे विल बी चेंज्ड इनटू that day and inverted commas will be removed. The next example is, this afternoon he said, my father will come today. Okay, now the reported speech will be, this afternoon he said, my father की जगह पर हम लिख देंगे his father. will की जगह पर हम लिखेंगे would. come today दिया हुआ है. ओके, टुडे का टुडे ही रहने दे रहे हैं, हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं. इसीलिए जहाँ ज़रूरी होगा वहीं पर ही चेंजेस करेंगे. दीज चेंजेस आर नॉट नेसेसरी एज पर द अबोव रूल. ओनली सम प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड. ओके, नेक्स्ट इज सिमिलरली. हेयर चेंजेस टू देयर अनलेस द स्पीच इज रिपोर्टेड एट द सेम प्लेस. जब तक स्पीच सेम प्लेस पे हो रही है तो हम चेंज नहीं करेंगे. जब स्पीच डिफरेंट प्लेस पे हो रही है, यहाँ की जगह पर वहाँ पर हो रही है, जो वर्ड जो चीज़ यहाँ कही गई है उसका मैसेज कहीं हम और दे रहे हैं, तो हेयर जो है वर्ड वो चेंज हो जाएगा देयर में. सेम वे दिस एंड दीज चेंजेस टू दैट एंड दोज अनलेस द थिंग और थिंग्स पॉइंटेड आउट आर नियर एट हैंड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीच. जब तक नज़दीकी हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बट इफ़ द डिस्टेंस इज चेंजिंग देन वी विल राइट दैट टू दोज. दैट को चेंज करके हम लिख देंगे दोज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल. We use say when we do not mention the person spoken to. Example is, Tom said he was busy. Next is, we use tell when we mention the person spoken to. The example for this is, Tom told me he was busy. Now, some important points which we have to keep in mind, or what we cannot say is, he said me he was busy. And the next one is, he told me he was busy. इस तरह से हम सेंटेंसेस नहीं लिख सकते. हमें नाम मेंशन करना होता है. ही सेड मी ही वॉज बिज़ी, किसने बोला, सो नाम हमको मेंशन करना है इधर, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते. बोथ प्रोनाउंस आर यूज्ड. फर्स्ट प्लेस पे भी प्रोनाउन है, सेकंड प्लेस पे भी प्रोनाउन है. कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस नहीं फ्रेम करेंगे. ही सेड मी ही वॉज बिज़ी इज़ रॉन्ग and he told he was busy is wrong. Okay, we need the person who is saying. So we end this chapter here. Children, study all the rules and learn all the rules and the table given on page number 77 of your textbook. I hope you have understood the chapter and cleared your concepts. Okay, so we will be learning more about this chapter in detail in the second part, which is chapter 20 of your textbook. Okay, in the next video we will be starting chapter number 20. Thank you.